Hello student, good morning. I am again coming with a redox reaction. In my last video lecture, I teach you about the oxidation reduction, and oxidation reduction reactions are actually called as the redox reaction. And we are going with this example, that is ZnO zinc oxide. It react with carbon and it form the Zn zinc plus carbon monoxide, in which I told you that carbon is oxidized substance. Carbon is oxidized substance. Why it is called the oxidizing substance? Because the oxygen added in carbon and it formed the carbon monoxide. So that we say that carbon is oxidized substance. And zinc oxide is reduced substance. Oxidized substance is carbon and it forms the carbon monoxide. Reduced substance is zinc oxide, because the removal of oxygen, if removal of oxygen reduction, so zinc oxide is a reduced substance and it forms the zinc. If addition of oxygen, it is oxidation. So carbon, it added with the oxygen and it formed carbon monoxide. So that we say that carbon is a oxidized substance. Now we identify that which one is a reducing agent in this reaction and which one is oxidizing agent. Oxidizing substance carbon, reducing substance zinc oxide. Reducing agent, as I told you, reducing agent means agent or chemical which self oxidized and it make the other chemical reduced, जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाए और दूसरे केमिकल्स को रिड्यूस करें. तो अगर हम यहाँ पर देखें, कार्बन इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड है ना, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए. जो सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड हो जाए और दूसरों का रिडक्शन करे, रिडक्शन ऑक्सीजन का निकलना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. सो कार्बन इज नॉन एज रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड but other chemicals reduced by it. Oxidizing agent. Oxidizing agent means a chemical which is self reduced and make the other chemical oxidized. जो self reduce हो जाए और दूसरे chemical को ये oxidized कर दें. Self reduced. Zinc oxide, it's self reduced because the removal of oxygen, it's self reduced and it make the other chemical oxidized. जो कार्बन का ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से निकल कर कार्बन को दे रहा है. सो ZnO is known as oxidizing agent. So I think it is clear to you all that which one is called the oxidizing substance, which one is called the reducing substance, which one is oxidizing agent, which one is called the reducing agent. And I told you that the oxidizing reducing substance in agent that we identified from the reactant, not in product. Let's another example. Fe2O3. Fe2O3 is called the ferric oxide. When it react with aluminium, it gives Fe plus Al2O3, aluminium oxide. Ferric oxide, when it react with aluminium, it form the iron and aluminium oxide. Now which one is oxidized substance? Oxidation किसका हुआ है ना, which one get oxidized? जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो. यहाँ तो ऑलरेडी आयरन के साथ में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो अब ऑक्सीजन किस में ऐड होना चाह रही है? एल्यूमिनियम के साथ में. सो एल्यूमिनियम गेट ऑक्सीडाइज्ड मीन्स ऑक्सीडेशन किसका हुआ? एल्यूमिनियम का. और ये क्या बन गया? ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस. देखिए यहाँ पर Al2O3, aluminium get oxidized because the oxygen is added in aluminium. If one reactant get oxidized, another get reduced.
आयरन के अंदर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो फेरिक ऑक्साइड जो है वो क्या हो गया यहाँ पर, रिड्यूसिंग सब्सटेंस. ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस इज एल्यूमिनियम and reducing substance is ferric oxide and it form the Fe iron. Clear? Oxidizing substance and reducing substance. Reducing agent and oxidizing agent. Reducing agent means the agent or chemical which is self oxidized and make the other chemical reduce. Aluminum itself oxidized एंड मेक द अदर केमिकल. फेरिक ऑक्साइड का यहाँ पर क्या करा रहा है, वो रिडक्शन करा रहा है, खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है. सो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया यहाँ पर, एल्यूमिनियम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेल्फ रिड्यूस्ड बट मेक द अदर केमिकल ऑक्सीडाइज्ड, जो खुद का रिडक्शन करें. फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड जो खुद का तो रिडक्शन कर रहा है, दूसरों का ऑक्सीडेशन कर रहा है ना. तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल विच वन इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग सब्सटेंस, विच वन इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. लेट वी चेक विथ वन एक्सरसाइज क्वेश्चन. Exercise question number first. Which of the statement about the reaction below are incorrect? About the reaction lead oxide with carbon, it form lead plus carbon dioxide gas. And the question is, which one are incorrect? There are actually the 4 statement. And you identify the option from here 1, 2, 3 and 4. यहाँ पर इस इक्वेशन के बेस पर आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है और आपको ऑप्शन जो है कि कौन कौन से इनकरेक्ट हैं आपको चूज करना है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4 में से यहाँ से चूज करना है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. लेड का रिडक्शन हुआ है. क्या लेड का रिडक्शन हुआ है? क्या लेड में से ऑक्सीजन निकली है या लेड ऑक्साइड में से? तो आपका आंसर होगा लेड ऑक्साइड. लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो रिडक्शन जो है वो लेड ऑक्साइड का हुआ है, ना ही लेड का. सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. नाउ द सेकंड वन, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ है. ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड यानी ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का इन्वॉल्व होना या ऐड होना. तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है या कार्बन के अंदर? तो आपका आंसर होगा कार्बन गेट ऑक्सीडाइज्ड. है ना, कार्बन के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर. सो द सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. नाउ द थर्ड वन इज कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. क्या कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है? यस, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड बना है. नाउ द फोर्थ स्टेटमेंट, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. लेड ऑक्साइड का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है. यस, लेड ऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड बिकॉज ऑक्सीजन रिमूव हो रही है लेड ऑक्साइड से, तो लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ. तो ये दोनों सी एंड डी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बट ए एंड बी इनकरेक्ट है. अब हम यहाँ पे चूज कर ले कहाँ पर है. तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा. द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आर ए एंड बी. लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, दैट इज फॉल्स. कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, दैट इज फॉल्स. क्लियर. तो इसी तरह आप जो दूसरे कुछ और भी एग्जाम्पल्स होंगे रेडॉक्स रिएक्शन के, उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस किसको कहें, रिड्यूसिंग सब्सटेंस किसको कहें, इस तरह रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, और आपको आइडेंटिफाई उसको रिएक्टेंट में से ही करना है. ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड द लास्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज corrosion. We practice with corrosion, that is also called the oxidation,
It is also called the rusting. Corrosion, or it is oxidation, or generally it is called as the rusting. Now what is the mean of corrosion? In daily life actually we observe that such metal lost its property. Metal lost its property. मेटल अपनी प्रॉपर्टी का लॉस्ट, कैसी प्रॉपर्टी? जनरली मेटल्स कैसे होते हैं? शाइनी. बट आफ्टर सच टाइम मीन्स जितना हम उसको यूज़ कर रहे हैं, द शाइनी सरफेस ऑफ मेटल जो है वो चेंज हो जाती है किसमें? डल. मेटल अपने एक्चुअल प्रॉपर्टी का लॉस करता है. शाइनी सरफेस कैसी हो जाती है? डल हो जाएगी. डिपोजिशन ऑफ अ थिन लेयर. उन मेटल के ऊपर किसी एक थिन लेयर का डिपोजिशन हो जाता है ना. एक तो वो डल हो जाएगा, कोई एक थिन लेयर जो है वो जनरली हमें मेटल्स के ऊपर से हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी. थिन लेयर का डिपोजिशन होना, तो ये सब क्या कहलाते हैं? मेटल की अपनी एक्चुअल प्रॉपर्टी का लॉस करना. तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं जनरली क्या कहलाते हैं? कोरोजन, ऑक्सीडेशन और रस्टिंग. So we say that what is corrosion? Generally metal, it is attacked by such substances which is present around it. ऐसे सब्सटेंस जो मेटल के चारों ओर यानी एटमॉस्फेयर के अंदर है. फॉर एग्जांपल मॉइस्चर, इट इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. एसिड, इफ इट इज़ रिएक्ट विथ एसिड, और द सल्फर पार्टिकल. Metal lost its property when it react with atmospheric moisture, sulfur particle and acid. That is actually called as corrode. Metal क्या हो गया यहाँ पर? Corrode, and that process is called the corrosion. That metal is actually called corrode when it react with moisture, acid and sulfur particle, and that process is called the corrosion process. For example, suppose हम यहाँ पर बात करें आयरन. अगर ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है Fe2O3. तो क्या यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ? आयरन अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए है ना किसी एलिमेंट में, किसी एटम्स के अंदर, तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो तो हम क्या कहेंगे उसको? ऑक्सीडेशन. तो इस प्रोसेस को कोरोजन एज वेल एज हम ऑक्सीडेशन ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि आयरन का यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, बिकॉज द ऑक्सीजन इज एडेड इन आयरन. दैट प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड एज रस्टिंग, बिकॉज व्हेन आयरन इट रिएक्ट विथ द ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ moisture, it form a thin layer which are deposited on its surface. Which type of layer? A brown layer is deposited on the surface of iron, and that is called the ferric oxide, and ferric oxide is generally called as the rust. A new compound is formed when iron react with oxygen in presence of moisture. A thin brown colored layer deposited on iron, and that is generally called as rust. The formula of rust is Fe2O3 dot XH2O. रस्ट, फॉर्मूला ऑफ रस्ट क्या हो जाएगा? रस्ट फॉर्मूला इज Fe2O3 डॉट XH2. हमें पता है कि आयरन अगर ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो ब्राउन कलर के लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है. मोस्टली हमने घर के अंदर आयरन आर्टिकल्स देखे हैं. अगर ये लंबे टाइम तक एयर के कांटेक्ट में रहे हैं, एक्सपोज्ड कर दे अगर हम इन आयरन आर्टिकल्स को, तो उनके ऊपर एक ब्राउन कलर के लेयर का डिपोजिशन होता है, जिसको हम अपने हैंड से स्क्रब करके भी हम देख सकते हैं. वही एक्चुअल में क्या है? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, जिसे हम कॉमनली हम क्या बोलते हैं? रस्ट ऐसा हम बोल रहे हैं.
तो उस रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3.XH2O मीन्स अननोन वाटर मोलिक्यूल। X का मतलब अननोन वाटर मोलिक्यूल। वो एक्चुअल में डिपेंड करेगा उस एरिया पर कि उस एरिया के अंदर मॉइस्चर का परसेंटेज कितना है, इसलिए यहाँ पर हमने XH2 लिखा है। पर्टिकुलर कोई X मोलिक्यूल, वाटर के मोलिक्यूल यहाँ पर नहीं लिखे कि 2, 3 ऐसा नहीं लिखा। रीज़न कि अलग अलग एरिया के अंदर मॉइस्चर अलग होता है, तो जिन एरिया के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होगा वहाँ पर रस्टिंग ज़्यादा होगी, और जिन एरियाज़ के अंदर मॉइस्चर कम होगा वहाँ पर रस्टिंग कम होगी। तो X जो है वो अननोन वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्चुअल में हम बात करें किसकी, मेटल जो है अगर वो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर, एसिड, सल्फर पार्टिकल के साथ में अगर वो रिएक्ट करे तो वो अपनी एक्चुअल प्रॉपर्टी का लॉस करता है। और मेटल अगर कुछ एक्चुअल प्रॉपर्टी का लॉस करने यानी किसी अगर नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है तो जनरली ऐसे मेटल्स को हम कोरोड मेटल ऐसा बोलते हैं, और उस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। जिसका एक एग्जांपल तो मैंने आपको बताया कि आयरन जो है उसकी क्या हो जाती है जनरली रस्टिंग, यानी कि एक रेडिश ब्राउन कलर की थिन लेयर का डिपोजिशन हो जाता है, जिसको हम कोरोजन एज वेल एज ऑक्सीडेशन ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं। सच अदर एग्जाम्पल, सिल्वर, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर मार्केट से जब हम परचेस करके लाते हैं तो सिल्वर का कलर कैसा होता है, सिल्वर इज़ ग्रे इन कलर। बट अगर इसको हम लंबे टाइम तक हम यूज़ में लें, है ना, तो जनरली जो सिल्वर आर्टिकल्स है उनके टर्निशिंग हो जाती है, यानी कि वो अपने एक्चुअल प्रॉपर्टी का लॉस करते हैं, थोड़े से डल हो जाते हैं, ब्लैक हो जाता है। जो एकदम शाइनी ग्रे होता है वो डल और ब्लैक हो जाता है ड्यू टू द डिपोजिशन और रिएक्शन ऑफ द सल्फर पार्टिकल। सिल्वर सल्फर पार्टिकल के साथ में रिएक्ट कर लेता है और ये क्या बना देता है, एक ब्लैक कलर की लेयर का डिपोजिशन हो जाता है। सिल्वर है ना जो कि ग्रे कलर का होता है वो कुछ टाइम बाद ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, अपनी एक्चुअल प्रॉपर्टी का लॉस कर। शाइनी जो होता है डल और ग्रे कलर जो है हल्का सा ब्लैक हो जाता है, क्योंकि वो सल्फ़र के साथ में रिएक्ट कर रहा है। अगर इसको हम बैलेंस करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2Ag + S विल गिव Ag2S, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर एंड सल्फर पार्टिकल्स। इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द कोरोजन, क्योंकि सल्फर पार्टिकल से रिएक्ट करें, अपने एक्चुअल प्रॉपर्टी का लॉस करे अगर कोई मेटल, तो भी वो क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। और जनरली इसको हम बोलते हैं टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर जो है टर्न हो गया, ब्लैक कलर का हो गया, वो ग्रे था ब्लैक हो गया। अनदर एग्जाम्पल, कॉपर, व्हेन इट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म द कॉपर कार्बोनेट। कॉपर सभी को अच्छे से पता है, कॉपर जनरली कैसा होता है, ब्राउन। बट जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ में रिएक्ट करता है तो इसका ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। तो ब्राउन जो है कॉपर वो कैसा हो जाता है, ग्रीन में। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में इसका क्या हो गया है, प्रोसेस हो गया, यानी कि इसके साथ में इसकी रिएक्शन हो गई है और एक नया कंपाउंड बन गया है जिसको हम बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। तो ये सारे एक्चुअल में क्या है, सारे ही एग्जाम्पल मीन्स आयरन का अपनी एक्चुअल प्रॉपर्टी का लॉस करना, है ना। आयरन शाइनी था, ब्राउन एंड डल फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देता है ये। सिल्वर ग्रे शाइनी ग्रे होता है, इसकी टर्निशिंग हो जाती है और ये ब्लैक एंड डल में चेंज हो जाता है। कॉपर ब्राउन और शाइनी होता है, डल और ग्रीन हो जाता है जब CO2 के साथ में रिएक्ट करता है। तो ये सारे ही एग्जाम्पल किसके हैं, कोरोजन के। अब इस कोरोजन के कारण से इफ़ेक्ट क्या आएंगे, तो जनरली इसका जो इफ़ेक्ट है वो कहाँ पर आता है, तो ऐसे मटेरियल या आर्टिकल जो उस मेटल से बने हुए हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें, कोरोजन कॉजेज द डैमेज ऑफ कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप एंड द अदर ऑब्जेक्ट विच इज़ मेड अप ऑफ मेटल्स। ऐसे जितने भी आर्टिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट जो मेटल से बने हुए हैं वो धीरे धीरे सभी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे।
अगर हम उसको डैमेज होने से बचाना चाहते हैं तो हम क्या करें? वी यूज़ सच प्रिवेंटिव मेथड। तो हमें कुछ प्रिवेंटिव मेथड जो है वो यूज़ करने चाहिए। प्रिवेंशन हम कैसे करें? मेटल को कोरोड होने से बचाना है तो उसको हमें क्या करना है? प्रिवेंट करना है। तो प्रिवेंटिव मेथड हम यूज़ करते हैं ऑयलिंग दैम, कि अगर जो मेटल है अगर उसके ऊपर हम एक थिन ऑयल की लेयर का डिपोजिशन कर दें तो वो कोरोड होने से बच जाता है। इसीलिए मार्केट में अगर कोई आर्टिकल्स है ना जो कि मेटल का बना हुआ है, या जनरली हमें बात करें कि जो स्कूटर या कुछ व्हीकल्स वगैरह जो हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं जनरली मेटल्स के बने होते हैं, तो उनके ऊपर ऑयल की लेयर का डिपोजिशन होता है। ऑयलिंग, ग्रीजिंग ऐसा भी हम बोल सकते हैं। A thin layer of oil or grease is deposited on metal to prevent from the corrosion. Painted them. पेंटिंग करना मीन्स कलर कर देना। जनरली ब्लैक कलर इज यूज्ड फॉर पेंटिंग। पेंट कर दें या तो उस मेटल को, है ना। जनरली हमने देखा है कि आयरन के बने हुए अगर गेट हैं, है ना, डोर हैं, विंडोज़ हैं, तो उसके ऊपर एक थिन लेयर का डिपोजिशन किया जाता है। ब्राउन, है ना, कलर जो होता है जिसको जनरली हम रेड ऑक्साइड ऐसा भी हम कहते हैं, या फिर सिंपली हम कह सकें कि उसको हम पेंटिंग कर दें किसी कलर से। और मोस्टली ब्लैक कलर का यूज़ किया जाता है क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो उसका कोरोजन नहीं होने देगा। तो प्रिवेंटिव मेथड मैंने बताया आपको ऑयलिंग देम, ग्रीजिंग देम, पेंटिंग देम, है ना, उनको पेंट करना। अगर उसको पेंट करेंगे तो भी उसका कोरोजन नहीं होगा। देन द नेक्स्ट प्रोसेस इज गैल्वेनाइजेशन। Galvanization, it is a process in which the steel and such other metal, इसको हम कोरोड होने से बचा सकते हैं if deposited a thin layer of zinc. If thin layer of zinc is deposited on steel and metal, it protect from the corrosion and that is called the galvanization. तो जिंक की एक थिन लेयर का डिपोजिशन है वो स्टील ऑब्जेक्ट्स और मेटल से बने हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है। यानी कि जब उसको बनाते हैं तो उनके अंदर मिक्सिंग कर दे या उसके लेयर का डिपोजिशन कर दे, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, जिससे स्टील और मेटल जो हैं वो कोरोड होने से बच जाएंगे। अनदर प्रोसेस दैट इज क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग, सेम, a thin layer of chromium is deposited on metal. अगर क्रोमियम की एक थिन लेयर का डिपोजिशन मेटल्स के ऊपर कर दे तो मेटल जो है वो कोरोड होने से बच जाएगा। ऑयलिंग देम, ग्रीजिंग देम, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन स्टील एंड मेटल, क्रोम प्लेटिंग, a thin layer of chromium is deposited on metal. Then मेकिंग एलोई। या तो हम क्या करें, एलोइज बना दे। एलोई क्या है? इट इज एक्चुअली द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल प्लस मेटल और मेटल प्लस नॉन मेटल। अगर हम मेटल्स या मेटल नॉन मेटल का एक राइट प्रपोर्शन अगर हम मिक्स कर दें तो वो किस टाइप का मिक्सचर हो जाएगा? होमोजीनियस हो जाएगा, जिससे एक नया मटेरियल बन जाएगा और उसी को जनरली हम क्या बोलते हैं? एलोइज, मेकिंग एलोई। तो ऐसा करने से वो एक्चुअल जो है वो पर्टिकुलर कोई एक मेटल नहीं रह के वो कंपोजिशन हो जाएगा मेटल्स का, जिससे उसमें कोरोजन होने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल कम या लिस्ट हो जाएंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर उसको एलोई बना दिया तो अब उसका कोरोजन नहीं होगा। अगर आप मेकिंग एलोई का अगर डिस्क्रिप्शन अगर आप लोग चाहें तो अपनी रीडर में चैप्टर 3 में इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि हम कोरोजन को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके डिफरेंट मेथड दिए हुए हैं। देखिए, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग,
Galvanization is a layer of zinc is deposited on iron, steel. Chrome plating, a thin layer of chromium is deposited on metal. Anodizing means making, anodizing है ना, ये सेपरेट एक और प्रोसेस है ना, एनोडाइजिंग, जिसमें जनरली क्या करते हैं, थिक ऑक्साइड लेयर जो है उसका डिपोजिशन जो है वो एल्यूमिनियम आर्टिकल पर करते हैं, जिससे एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लेयर का डिपोजिशन हो जाता है जो कोरोजन से प्रोटेक्ट करता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है वो भी आपके अंदर चैप्टर में दिया हुआ है। तो एनोडाइजिंग करने से भी कोरोजन होने से बच जाएगा, किसका, एल्यूमिनियम का। ठीक है। मेकिंग एलोई बना दें। एलोई इज एक्चुअली द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ मेटल एंड नॉन मेटल। या तो वो मेटल हो या फिर मेटल नॉन मेटल हो, तो उसको हम क्या बना सकते हैं, एलोई बना सकते हैं, है ना। कुछ एक एग्जाम्पल अगर हम एलोई के देखें, फॉर एग्जाम्पल ब्रॉन्ज इज कॉल्ड एलोई। इट इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड स्टेनम, टिन, स्टेनम उसको कहेंगे हम, SN, लैटिन नेम इज स्टेनम। स्टेनलेस स्टील इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन, chromium, nickel and small amount of carbon is also added in stainless steel. Brass is a combination of copper and zinc, 70-30% ratio. Another example, solder, lead plus stannum, है ना, प्लम्बम प्लस स्टेनम, लेड प्लस टिन का जो यूज़ है वो सोल्डर मेकिंग में किया जाता है। सोल्डरिंग में यूज़ इलेक्ट्रिसिटी और उसमें जनरली सोल्डर्स का यूज़ किया जाता है। क्लियर। अनदर एग्जाम्पल, एलोई ऑफ मरकरी, अगर मरकरी का एलोई बना दें हम, इट इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मरकरी एंड सिल्वर, यानी मरकरी के अंदर क्या मिक्स किया हमने, सिल्वर, एंड द एलोई ऑफ मरकरी इज जनरली कॉल्ड एज द अमलगम। सो ये सारे एक्चुअल में क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि हम कोरोजन को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड हो जाएंगे। और आप अगर एलोई के लिए और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आप देखना चाहते हैं तो आप 3rd चैप्टर में बिल्कुल क्लियरली वहाँ पर भी ये टॉपिक दिया हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि किस तरह से कोरोड होने से हम बचा सकते हैं मेटल्स को, यानी मेटल की एक्चुअल प्रॉपर्टी का हम लॉस होने से किस तरह से बचा सकते हैं। ओके, देन लास्ट I explained you about the rancidity. The last topic of this chapter is rancidity. Rancidity, it is a process in which such food item, किस टाइप के फूड आइटम, which contain fat and oil, such food item which contain fat and oil get oxidized, कि कुछ फूड आइटम जो हैं जो कैसे हैं, या तो उनके अंदर फैट है या ऑयल कंटेनिंग है, अगर उसका हम लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर हम उसको एक्सपोज्ड करें तो वो कुछ टाइम में वो क्या हो जाएंगे, अपनी जो एक्चुअल प्रॉपर्टी उसका लॉस्ट करेंगे, यानी कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। एक्चुअल प्रॉपर्टी का लॉस करना, इट मीन्स चेंज टेस्ट, चेंज ऑर्डर और स्मेल, चेंज कलर, है ना। एक्चुअल प्रॉपर्टी का लॉस करना किसका, फूड आइटम, चेंज इट्स एक्चुअल प्रॉपर्टी व्हेन इट गेट ऑक्सीडाइज्ड। लेकिन किस टाइप के फूड आइटम, विच कंटेन फैट एंड ऑयल। और ये जो प्रोसेस है ना, वो कैसे, एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है ना, स्लो प्रोसेस है। तो जनरली ऐसे फूड आइटम जो फैट एंड ऑयल कंटेनिंग है, उनकी स्मेल, टेस्ट एंड कलर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेथड जो हैं वो जनरली यूज़ किए जाते हैं। हाउ टू वी प्रिवेंट, है ना, उनको, है ना, ये प्रोसेस तो क्या कहलाया, रेंसिडिटी। और ऐसे जो फूड आइटम हैं उनको हम बोलेंगे रेंसिड फूड आइटम।
प्रोसेस का नेम क्या हो गया, रेंसिडिटी। और ऐसे जो फूड आइटम है उनको हम क्या कहेंगे, रैंसिड फूड आइटम। कैसे फूड आइटम, जो फैट एंड ऑयल कंटेनिंग है, जो ऑक्सीडाइज्ड हो जाए यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लें, ऑक्सीडाइज्ड हो जाए और वो अपना टेस्ट चेंज कर ले, स्मेल चेंज कर ले या फिर ऑर्डर चेंज कर ले, तो ऐसे फूड आइटम्स को हम क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड द रैंसिड फूड आइटम एंड द प्रोसेस of and that process is called the rancidity. How to we prevent? We generally used antioxidant. एंटीऑक्सीडेंट्स का जनरली इसमें यूज़ किया जाता है जो उनको प्रिवेंट करेगा, यानी कि जो फूड आइटम जो फैट एंड ऑयल कंटेनिंग है उनके टेस्ट, स्मेल एंड कलर चेंज होने से बचाएगा। एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ किया जाता है। देन इनको हमेशा हम कैसे, कीप देम इन एयर टाइट कंटेनर, कीप देम इन एयर टाइट कंटेनर, यानी कि जब इन फूड आइटम को हम रखें तो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होने चाहिए, एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर इसकी हम स्टोरिंग करें। एंटीऑक्सीडेंट्स का जनरली हम इनमें मिक्सिंग करें, यूज़ करें। चिप्स मार्केट से, जैसे हम कोई फूड आइटम खरीद रहे हैं ना, चिप्स या कोई क्रंची आइटम्स खरीद रहे हैं, तो आपने देखा जनरली उस वो जो फ्लश बैग है जो आप जिस पैकेट के अंदर वो बंद है तो उसके अंदर कुछ एयर जो है वो भरी हुई रहती है। तो एयर कौन सी एक्चुअल में, नाइट्रोजन। जिस समय फूड आइटम की पैकिंग की जाती है तो उसमें एयर एंटर रहती है, नाइट्रोजन को उसके अंदर फिल किया जाता है ताकि नाइट्रोजन उस पैकेट के अंदर जो ऑक्सीजन है उससे वो रिएक्ट कर ले, खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, लेकिन उस फूड आइटम के ऑक्सीडेशन से बचा ले, फूड आइटम को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचा लेगा और खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, यानी फूड आइटम जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा अगर नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भरी है तो, है ना। तो नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और फूड आइटम को बचा लेगा। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेथड है कि किसी फूड आइटम को हमें रेंसिड होने से बचाना है तो हम क्या करें, तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे पिकल है तो उसको स्पॉइल होने से बचाने के लिए उसके अंदर या तो विनेगर का यूज़ किया जाता है या फिर साल्ट एंड ऑयल जो है वो उसके अंदर यूज़ किया जाएगा, है ना। तो वो रेंसिड होने से बच जाएगा, फूड उसका टेस्ट चेंज होने से बच जाता है, स्मेल उसकी ख़राब नहीं होती है, उसका कलर चेंज होता है। और ऐसे फूड आइटम को जनरली हम एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रख दें। एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखेंगे तो क्या होगा कि उनको एयर नहीं मिल पाएगी जिससे उनका ऑक्सीडेशन होने से बच जाएगा। एंड द लास्ट वन इज, इफ ऐसे फूड आइटम जो पैकेट्स के अंदर बंद हैं, है ना, उनके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन, मीन चिप्स मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर हो रही है, जो फ्लश बैग से चिप्स के दैट कंटेन अ नाइट्रोजन गैस, इट प्रिवेंट चिप्स एंड अदर फूड आइटम फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन होने से बचा लेगा। नाइट्रोजन खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा बट फूड आइटम का ऑक्सीडेशन होने से बचा लेगा। ओके, सो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक बार रीड करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आई थिंक मोस्ट ऑफ चीज़ जो है वो हमने कवर कर ली। मे बी अगर कोई रह गई हो तो आप उसको अच्छे से रीडिंग करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे 9672105510 जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं नेक्स्ट या तो मेरे किसी वीडियो लेक्चर में आपकी जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।